Hello everyone. This video is really important for those who are appearing for CAPF this year, and I will tell you in this video how you can easily score 6 marks out of 10 in the report writing. And in the last in the end of the lecture you will get most important topics which can be asked in the upcoming CAPF exam. So before coming to that particular thing, the major important topic, first of all we need to understand what basically UPSC ask, what type of question UPSC ask in the exam, and how many types of reports are there. After telling the types of the reports, how you can basically approach a topic, I'll tell you, you need not to follow the basic the traditional way of writing and report, that is I think in the college or in the schools you have basically taught in a way that you need to approach a report. In the introduction you need to write, you need to answer various WH family words. You need to answer who, when, where, how, what. These kind of words you need not to answer in the report, which you have to write in the CAPF exam. I'll tell you the simple formula which you need to implement. Right, so let's begin the lecture with the major themes of report writing which are basically asked in the CAPF exam. I'll tell you where these themes are asked in the exam. First of all, you need to understand that the report basically asked from the society, Indian society topic, mainly from the women and child. You'll find report topic from the education. You will basically find topic from the environment theme. You will find topic from the politics, from the health, from the disaster, agriculture, rescue operation, and the resource crisis, and the case studies. Right, so these are the major themes. Now coming to the types of report writing in CAPF-AC, you will get incident based, accident based, information based, operation based, and case studies based report. You will get out of these themes. Out of these themes you will get either an incident based and an accident based, and information based, and operation based, and case studies based. These are the basic types of report writing, and these are the major themes of report writing which are asked in the CAPF exam. Now coming to the 2020 paper, the topic was the report writing topic was asked by the UPSC is the evidence of fallow feeling during the COVID-19 pandemic and green energy progress in India. Now evidence of fallow feeling during the COVID-19 pandemic, it's a case study, and the green energy progress in India, you can call it either it can be an information based, right, or it is from which theme? It is, I think, from the resource. You can talk about resource and environment, combination of both resource and environment. Now in 2021, the reports topic which were asked by the UPSC was oxygen cylinder crisis in Delhi and poll violence in West Bengal. Poll violence in West Bengal, it is what? It is a political topic, right? It is a political topic, so it is under the theme of politics. And oxygen cylinder crisis in Delhi, ये कौन सी थीम से है आपका? It is basically a theme of resource crisis and plus health. तो दो हो गई इसमें, resource plus health, दो थीम से ये पूछा है. अदर आई थिंक इन द 2020 ईयर रिपोर्ट राइटिंग के जो टॉपिक थे वो है प्रोविजन फॉर प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. सो इट इज फ्रॉम द एजुकेशन थीम. एंड द इम्पैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लॉज ऑन फार्मर्स, इट इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल टॉपिक. It is also a political topic, plus it is also a topic from the agriculture. ठीक है, समझ में आया आपको? थीम समझ में आ रही है? 2019 के अंदर जो टॉपिक आए थे रिपोर्ट राइटिंग के, दैट इज द राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज. द राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, इट इज फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी थीम, एंड द मेन टॉपिक इज अबाउट द चाइल्ड. तो चाइल्ड के ऊपर है ये. नेक्स्ट इज वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर. इट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस resource crisis, plus you can connect it with Indian society. What would be the impact of water crisis and access to drinking water? So it is the resource crisis plus society से भी connect कर सकते हैं इसको. Another thing is data leak from the Facebook. It is an incident based. Violence on university campus during student election, against an Indian society topic, plus an incident based. Another thing is violence on university campus during student election. Again, it is connected also with the politics. It is because during the time of student election. Now in 2017, topics were corruption in politics and environmental pollution. So corruption in politics again falls under politics theme, and environmental pollution ये भी आपका environment theme के अंदर आएगा. Again 2016 के अंदर जो है रिसीडिंग ग्लेशियर, अगेन एनवायरमेंट थीम के अंदर है, और बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार, अगेन अ पॉलिटिकल टॉपिक, प्लस एंड इंडियन सोसाइटी का भी टॉपिक है कि अल्कोहल बैन से सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा. प्लस इसमें आप इंडियन सोसाइटी में देख सकते हैं. दूसरा इसमें आप ये भी देख सकते हैं, इट कैन बी ऑल्सो सेड एज एन इंसिडेंट बेस्ड. ठीक है,
सेकंड इज रिपोर्ट राइटिंग ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स, 2015 के अंदर ये आया था। ऑपरेशन राहत इन यमन, ऑपरेशन बेस्ड है, और एसिड अटैक ऑन वीमेन, अगेन इंडियन सोसाइटी थीम है और वीमेन उसकी सब थीम है। नाउ 2014 के अंदर देखिए, पेनिट्रेशन ऑफ लेफ्ट विंग एंड एक्सट्रीमिज्म इन ट्राइबल एरियाज एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये है इंडियन पॉलिटिक्स का टॉपिक, एंड पेनिट्रेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ट्राइबल एरियाज, ये आपका इंडियन सिक्योरिटी से आता है, और ये आपका एक्सीडेंट बेस भी हो सकता है, अटैक्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक पूछे हैं इस बार। आप देखिए, मैं बताऊंगा इन सभी थीम्स को एनालाइज करने के बाद कौन से प्रोबेबल टॉपिक है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, शायद उसमें से कोई टॉपिक आ जाए। तो हमारी कोशिश यही है, इन टॉपिक्स को एनालाइज करने के बाद आपको कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए। नाउ 2013 के अंदर देखिए, उत्तराखंड डिजास्टर इन द रोल ऑफ इंडियन मिलिट्री। ना उत्तराखंड डिजास्टर आपका डिजास्टर थीम से आया है और ये एक्सीडेंट बेस्ड है। अगेन द क्राइसिस ऑफ एथिक्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट, अगेन अ केस स्टडी 2012 के अंदर आप देखोगे, एज अ कोरस्पोंडेंट ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर राइट अ रिपोर्ट ऑन द इम्पास इन 2012 मॉनसून सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, अगेन इंडियन पॉलिटिक्स का टॉपिक आपका पॉलिटिकल थीम से है। नाउ ड्राफ्ट अ रिपोर्ट सजेस्टिंग मेजर्स टू एनकरेज वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, अगेन it is a topic of what, it is a cumulative topic of agriculture, it is a cumulative topic of resource crisis, it is a cumulative topic of environment, तीनों से आप इसको डाल सकते हो। Now 2011 के अंदर देखिए, आपके दो टॉपिक आए थे, डैमेज कोज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ रिसेंट फ्लड, अगेन ये जो टॉपिक है आपका, आप इसको देखोगे ये डिजास्टर थीम के अंडर है, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NRHM इन योर डिस्ट्रिक्ट, अगेन हेल्थ थीम से है, प्लस ये आपकी केस स्टडी है, implementation of NRHM in your district. It is basically depends upon the case study, and plus your theme is health. Now expected topics for report writing, these are the expected topics of report writing. After telling this expected topic of report writing, I'll tell you how you can write a very good report. You can easily fetch 6 marks, and 6 I think it's the maximum you get in the report writing. कोई आपको 7 या 8 9 नंबर बताता है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो 6 marks is, I think it's more than sufficient, or 6.5 I think maximum you can get it, 6.5 7 maximum, 7 भी नहीं मिलते but 6.5 इतना ही मिलता होगा, 6 marks मिलते होंगे। This is the I think and the average score in report writing you will get is 5 or 4, report writing के अंदर average score यही रहता है। So please understand 6 marks score करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो मैं उसके इन टॉपिक्स के बाद बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक एनवायरमेंट थीम के अंडर लाई करता है, तो ये मुझे लगता है कि ये टॉपिक बन सकता है, बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक, राइट। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रहा है, हिमालयस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। यू हैव सीन जो शिमट के अंदर लैंड सब्सिडेंस था, हिमालयन के अंदर आपने देखा है रिसीडिंग ग्लेशियर्स भी हैं, तो मेल्टिंग हिंदू कुश हिमालयस। अनदर थिंग यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूपीएससी इज अर्बन मैनेस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। तो आपको पता है स्ट्रे एनिमल्स और डॉग का मैनेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया अर्बन एरियाज़ के अंदर। नोएडा का इशू आपको पता होगा, बेंगलोर का इशू आपको पता होगा, दिल्ली का इशू आपको पता होगा, ठीक है। स्मॉल चाइल्ड बेसिकली मोल्ड बाय दिस स्ट्रे एनिमल्स एंड द डॉग्स। तो ये एक टॉपिक बन सकता है, एंड इट्स सोसाइटी का टॉपिक है कि सोसाइटी के अंदर आपको पता होगा कि लोग रखते क्यों फीड करते हैं स्ट्रे डॉग्स को, और सोसाइटीज़ के अंदर भी जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे भी जो एनिमल्स होते हैं उनको पेट जो होते हैं उनको रखा जाता है। दैट इज़ ऑल्सो अ थ्रेट फॉर द स्मॉल चिल्ड्रंस। नाउ रिसेंट माइस्ट अटैक एंड आईडी ब्लास्ट, आपको पता है छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ था, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फॉरेस्ट फोर्स के काफ़ी जो सोल्जर्स थे वो इसके अंदर मारे गए थे। अगेन रिसेंट अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, बहुत सारे टारगेटेड किलिंग हो रही हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, एंड वी हैव सीन रिसेंट अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। यू कैन एक्सपेक्ट अ टॉपिक माफिया एंड पॉलिटिकल पैट्रोनेज, जो आपको पता है यूपी के अंदर जो अभी केस हुआ था, अंसारी वाला केस था शायद जो, ठीक है। एंड इन दैट केस आपको पता है कि इन द ओपन, ठीक है, द पीपल हु आर डिस्गाइज्ड एज जर्नलिस्ट, उन्होंने क्या किया था, आतिक अंसारी को मार दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है ये, उसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज कहाँ से मिली है, माफिया ट्रेंड जो है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है सोसाइटी से मिला हुआ टॉपिक है, आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए। ऑपरेशन कावेरी दोस्त, ये ऑपरेशन बेस्ड हैं, यूपीएससी इनको पूछ के थक गया है, शायद ना आए, बट मैंने फिर भी इसमें इंक्लूड कर दिया। हेट स्पीच, मणिपुर वायलेंस पे आपको रिपोर्ट मिल सकती है इस बार, एंड इंस्टेंसेस ऑफ फेक न्यूज़ एंड ट्रेंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप इज रियली इंपॉर्टेंट, इंडियन सोसाइटी को टच करता है, ठीक है। नाउ रेडिकलाइजेशन इन पंजाब एंड कास्ट बेस्ड सेंसस इन बिहार कैन बी आस्क्ड, क्योंकि हमने देखा है यूपीएससी में हमने देखा है कि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट, प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी गवर्नमेंट है दूसरी स्टेट्स में, उसमें कुछ भी होता है तो यूपीएससी वहाँ से पूछ रहा है। दिल्ली के अंदर हुआ ऑक्सीजन क्राइसिस, बंगाल के अंदर पोस्ट जो आपको वायलेंस दिखा, पोल वायलेंस, बिहार के अंदर अल्कोहल बैन दिखा आपको, तो यूपीएससी ने वहाँ से पूछा, ठीक है। तो मुझे लगता है कास्ट बेस्ड सेंसस बिहार के अंदर हो रहा था, बहुत कंट्रोवर्शियली यहाँ से आ सकता है। पंजाब के अंदर रेडिकलाइजेशन का इशू है, शायद रिपोर्ट राइटिंग पूछ ले।
Another important thing, the cases of landslide in India, hazards of urbanization, G20 presidency की पे पूछ सकता है, incident of honey trapping. I think this is a really important topic. honey trapping पे शायद क्वेश्चन बन सकता है. DRDO वाला केस आपको पता होगा, ठीक है. It is really important topic. ठीक है. तो ले ऑफ वाला जो है, ले ऑफ एम्प्लॉयज इन कॉर्पोरेट सेक्टर, आपको पता है एक लाइन लगी हुई है ले ऑफ करने में. रिसेंटली द बायजूस क्राइसिस इज देयर, उससे पहले आपको पता होगा एक्सेंचर से बहुत सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया गया था. बहुत सारे नंबर ऑफ ले ऑफ्स वी हैव सीन. एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ. दीज आर द रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू नीड टू प्रिपेयर. अगर जल्दी से आप इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें आपको ऐसा नहीं है कि कोई आप लिखने ही बैठ जाओ इन रिपोर्ट्स को. आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हो. नाउ अंडरस्टैंड हाउ यू कैन राइट अ गुड रिपोर्ट. So you can write a good report if you have certain things in your mind, like suppose first of all you need to mention, जैसे आपको ये टॉपिक मेंशन होता है जब आपकी आंसर शीट वहाँ पे आपको मिलेगी, एनवायरमेंट पोल्यूशन ऐसे लिखा होगा, आपको दोबारा से उसका टॉपिक नहीं लिखना है. ठीक है. टॉपिक इज ऑलरेडी मेंशन देयर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन. और लिखने को लिख भी सकते हो सेंटर में, अगर लिखना चाहो तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऐसे लिख सकते हो, बट इट इज़ ऑलरेडी मेंशन. तो मुझे लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है. तो आपकी मर्जी है, इट इज़ योर कॉल, ऑप्शनल है. लिखो तो जब भी आपके कुछ ज़्यादा वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करेगा. नहीं लिखोगे जब भी कुछ नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि टॉपिक इज़ ऑलरेडी मेंशन देयर. आंसर शीट में ये मेंशन होगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और इसके नीचे ही लिखना है आपको. ऐसा नहीं कि आपको कहीं और लिखना है, यहीं पे लिखना है. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इट इज़ दिस रिपोर्ट इज़ बेसिकली रिटन बाय XYZ. डेट मेंशन करनी है, प्लेस मेंशन करना है, एंड यू नीड टू ओपन अप द रिपोर्ट विद अ गुड इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन थोड़ा फैक्चुअल होगा, इंसिडेंट आप उसमें लिखोगे, ठीक है, तो अच्छा रहेगा. जैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन पे रिपोर्ट है तो मैंने इसमें मेंशन कर दिया वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अंदर इंडिया की 6 सिटीज़ जो हैं टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आती हैं वर्ल्ड की. PM 2.5 और 10 बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 2-3 गुना हो गया है नेशनल एयर एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड लिमिट से. तो इन दिस वे आई हैव ओपनड अप माई रिपोर्ट. उसके बाद I will directly come to the organization which are responsible for maintaining or controlling air pollution in India. तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सभी पॉल्यूशंस को देखता है आपके, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, और साउंड पॉल्यूशन हो गया, जितने भी तरह के पॉल्यूशन है, रिवर वाटर पॉल्यूशन, सभी पॉल्यूशन को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखता है. ठीक है. तो इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट भी निकाली है जिसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किसके बारे में बात करता है, प्लास्टिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट. ये मैंने खुद ही बनाया, मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है. आपको यहाँ पे ये देखना है, जब भी आप रिपोर्ट को अप्रोच करें इस तरह की, तो आपको मेंशन करना है कॉजेज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड द रीजंस. कॉजेज या फिर रीजंस ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, प्लस उसके बाद आपको ये मेंशन करना है इफेक्ट्स. एनवायरमेंट पोल्यूशन के क्या इफेक्ट होंगे. बस ये चीज़ें दिमाग में रहेगी तो आप इजीली रिपोर्ट को बना पाओगे. तो कॉजेज की अगर बात करूँ, कॉजेज क्या हो सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, एंड दीज आर द कॉजेज. एंड उसकी इफेक्ट की बात करोगे, इफेक्ट की बात ये देखिए, प्रॉब्लम्स में रेस्पिरेटरी इशू हो सकते हैं, वाटरबोर्न इश्यूज हो सकते हैं, स्किन कैंसर्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. सो मेरा कहने का मतलब है, इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसका रेफरेंस ले सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेट नहीं करूँगा. तो मेरा कहने का मतलब है, रिपोर्ट राइटिंग के अंदर 200 वर्ड्स में जब आपको लिखना है, एक छोटा सा इंट्रो होना चाहिए, उसके बाद आप कॉजेज डिस्कस करोगे उस टॉपिक के पीछे, उसके बाद फिर आप इफेक्ट डिस्कस करोगे, क्यों ये चीज़ें हो रही है, उसके बाद गवर्नमेंट के स्टेप्स डिस्कस करोगे. गवर्नमेंट के स्टेप डिस्कस करते ही आपका टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. गवर्नमेंट के स्टेप्स नहीं तो उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्या हो रहा है. सो यही था रिपोर्ट राइटिंग पे. इस पर मैं ज़्यादा आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शायद डाल दूँ इस वाली वीडियो का, कि ये हम कैसे बना सकते हैं, ये रिपोर्ट हम कैसे लिख सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो. और रिपोर्ट राइटिंग से आपको क्या लगता है कि किस हिसाब से आपको और भी ज़्यादा अच्छा, मतलब आप प्रिपेयर कर सकते हो रिपोर्ट राइटिंग. तो क्या मैं आपको एक असाइनमेंट दूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे. एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इसके ऊपर एक लिखना है, एक अच्छा सा टॉपिक मैं आपको दूंगा, उस पर आपको लिखना है AI एंड ChatGPT. इस टॉपिक पे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, AI एंड ChatGPT पे कमेंट बॉक्स में 200 वर्ड्स में आप लिखिएगा कैसे आप उसको अप्रोच करेंगे. ठीक है. सो दिस आई कैन ओनली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज. अगर आप इतना कर देते हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी. तो इसमें मुझे लगेगा कि मुझे वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा कि ऑडियंस देख रही है और रिस्पॉन्ड कर रही है. सो थैंक यू गाइज. दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो. जल्दी ही दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हाउ यू कैन राइट अ प्रेस.